Yes, students, are you able to hear me? Yes, sir. Sir. And my screen is visible now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Acha. Many of the only few students are here today. Okay, last lecture, anyone remembers where were we? Hope you all had a good vacation. Anyone remembering where were we last lecture? I know where were we, but I am just asking you. You see, please, my dear student, join on time. You see, still many students are joining, so our lecture is delayed. Please join on time. You see, still many students are joining. We will have to wait for 5 minutes for your friends. Yeah, anyone? Is Adnan there? Anyone remember where were we? You see, you are around 50 students. Can anyone Sir, tell? we finished Page question number number 6. 27. Question Sir, number 6. Okay. So I have opened the right page. Question number 6 is before you. All have completed their notebook, I suppose. Yes. yes, sir. Good. And any problem faced by all while studying? Any problem anyone has faced? Kindly ask. Any problem, बच्चे, any problem anyone has faced? Yeah, you start reading question number 6. Tell your friends come. Please join on time for 8 comers. Please join on time. Adnan, Yes, sir. how were your holidays? Good, sir. Good. Any problem? No, sir. All is well. Yeah, still Okay. now all is well. Sharon Miss, are you there? You see, at 2 o'clock only 30 students were there. Now 62 students are there. Please join on time. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. May I know who's this? Excuse me. You see, so शेरन मिस, आपका असिस्टेंट टीचर होना आप मेरे साथ आज. हेलो. आप असिस्टेंट आज मेरे साथ होना आप. अच्छा अच्छा, ठीक है. ओके. मैं बहुत गलत. कोई बात नहीं.
हाँ मिस, हाँ पता नहीं, वो तो मैं क्या बता सकता हूँ। आप वहाँ कॉलेज ही बात करो। ओके, any difficulty during the holidays? You all might have studied and you came across any difficulty, kindly ask. Dear student, don't hesitate to ask any difficulty or I will create difficulties. Anyone till now, what all we have studied, any difficulty faced by any student, feel free to ask. Feel free to ask. So no difficulty. Today we will be doing question number 6. Yeah, question number 6 now. I think we shall start. We are 80 people now. Shall we start now? Okay, classify the following accounts under the type personal, real and nominal. So you have to classify the accounts. Sorry to interrupt. Kindly make me the co-host. Okay, madam. Okay, madam. You are co-host now. Thank you, sir. Okay, welcome. Okay, so we have to classify which type of accounts these are. The mentioned are Rohit capital account. Rohit capital account. Okay, Rohit capital account. Achal Kushwa, are you there? Achal Kushwa, are you listening me? No, no one will listen. Akanksha, are you listening me? Yes, sir. Akanksha, Rohit capital account is which type of account? ये पर्सनल अकाउंट है। Why? Reason? ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। No, it is a natural person. No, it is the creation of God. Rohit is a creation of God. It is a personal account. Very rightly said. Okay. Then loose tool. Which type of account it is? Who will answer? Achal has answered. Akanksha, Charasia. Akanksha, will you answer it? Loose tool. Achal, are you there? आयुष नार, are you there? अरे गलत बोलो बेटा, बोलो तो सही। हाँ नहीं, जिसको मैं पूछूंगा वही बोलेगा, फिर लास्ट में मैं आई वाला बोलेगा। आयुष नार, अभिषेक इनामदार, अभिषेक श्रीवास्तव, या कोई भी नहीं है, मतलब इन सब की एब्सेंट लगाता हूं मैं। जो बोल नहीं रहा है ना, उन सब की एब्सेंट लगाता हूं मैं। हाँ, कौन है ये? किसका आवाज आया? अभिषेक इनामदार, अभिषेक श्रीवास्तव, आदित्य। सर केनाई। कौन है ये? केनाई का नाम बोलो। प्रीति शिंदे। प्रीति शिंदे। ओके प्रीति, टेल मी which type of account loose tool is? It's a real account. It is a real account. Why? It is represent to assets or and properties. ओके, वेरी गुड बेटा। अरे लूज टूल मतलब कोई औजार है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो ये अपना असेट है, और जो असेट है वो रियल अकाउंट होता है। जो असेट है वो रियल अकाउंट होता है। अच्छा, अब ये ड्राइंग, थर्ड वन इज ड्राइंग। ड्राइंग कौन सा अकाउंट है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। कौन बोला ये? संध्या। संध्या, वेरी गुड संध्या। इट इज पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर, सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट।
अच्छा, उसके बाद मैं जिससे पूछूं वही बोले, थोड़ा सा अपने इमोशंस को होल्ड पे रखो। कार्टेज, पहले कार्टेज का मतलब किसी को पता है? कार्टेज का मतलब कौन बताएगा? No, sir. रिपेयरिंग। कार्टेज का मतलब बोलो। मैं बता देता हूँ, कार्टेज का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे अपन कोई सामान खरीदे ना, अपन ने कोई गुड्स खरीदे, तो जहां से अपन ने खरीदे, जिस प्लेस से अपन ने खरीदे, उस प्लेस से अपनी दुकान तक, अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा होता है उसको कार्टेज, कैरेज, फ्रेट, इन नामों से जाना जाता है। तो कार्टेज किस तरह का अकाउंट हुआ मेरे प्यारे बच्चों? नॉमिनल। नॉमिनल। कौन बोला ये? सर अफनान। वेरी गुड, थोड़ा सा होल्ड पे रखो बेटा, मैं सबको पूछूंगा, ठीक है? तो ये खर्चा है, और जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो नॉमिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रीपेड रेंट, हाँ अफनान आप बताइए, ये प्रीपेड रेंट किस तरह का अकाउंट हो? मेरे को केवल आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, आंसर तो बुक में दिए गए हैं, मेरे को रीजनिंग में इंटरेस्ट है मेरे बच्चे। या रीजनिंग चाहिए मेरे को मेरे प्यारे बच्चों। तो अफनान बताइए ना, प्रीपेड रेंट किस तरह का? कारण समझाओ मेरे को, कारण समझाओ। वो तो किताब में से देख के कोई भी बोलेगा, कारण बताओ। बोलो बेटा, कारण बताओ। रिप्रेजेंट कर रहा है वो। किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेंट को, रेंट नहीं अकाउंट को। नहीं, थोड़ा सा गलत है। आंसर आपका सही है, ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आपकी रीजनिंग गलत है। और कौन बताएगा? तो एनीवन है? एडवांस में पैसा देना। हाँ, अरे प्रीपेड रेंट का मतलब यही है बेटा कि आपने एडवांस में रेंट दे दिया है, और ये पर्सनल अकाउंट है। ये आंसर तो सही है, लेकिन रीजनिंग सही नहीं है सर बच्चे। किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अब और अच्छे से समझाओ, बिल्कुल सही बोला मेरा बच्चे। देखो, प्रीपेड रेंट क्या है? आपने किसी को एडवांस में रेंट दिया है, तो जो एडवांस में रेंट दिया है ना, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप रेंट किसको दोगे? लैंडलॉर्ड को। किसको दोगे? लैंडलॉर्ड को। तो ये प्रीपेड रेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो लैंडलॉर्ड इज अ पर्सन। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे अपन को टाइप ऑफ पर्सन नहीं पूछा है, अपन केवल पर्सनल लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद कॉपीराइट। कॉपीराइट किस तरह का अकाउंट है? अदिति कुंभार, आर यू देयर? हाँ अदिति बोलो, कॉपीराइट किस तरह का अकाउंट है मेरे बच्चे? रियल अकाउंट सर। कारण बताओ अदनान। यस सर। सर ये हम्म। इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि वो उसका वो करता है ना, कॉपीराइट वो एक कंपनी का बना के रखता है, कोई और क्लेम है उसका कंपनी का। देखो, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? लोगो नहीं बच्चे, नहीं, कॉपीराइट का मतलब ये नहीं होता है, कंफ्यूज मत हो। आपने बिल्कुल सही बोला है जो कुछ बोला है, लेकिन थोड़ा उसमें मैं और ऐड कर रहा हूँ। कॉपीराइट का मतलब है किसी चीज को कॉपी करने का राइट। जैसे मैंने कोई बुक लिखी है ना, अब मैंने इसको कॉपी करने का राइट किसी को दे दिया है, तो वो ये बुक को छाप करके बेच सकता है। तो ये एसेट है। ये क्या है? किसी चीज को कॉपी करने का राइट होता है, ये एसेट है, रियल अकाउंट है। ये लोगो नहीं है। लोगो तो होता है आपका कोई मार्क, आपका कोई जैसे निशान, आपका कोई मार्क होता है ना, मैकडोनल्ड का है, मैं ट्रेडमार्क। हाँ, कोई ट्रेडमार्क होता है, तो वो होता है आपका लोगो। अच्छा, उसके बाद पेटेंट। पेटेंट क्या है? कौन सी तरह का अकाउंट है बच्चा? आकाश कौन है? अक्षाली प्रसाद, अफनान से अपन मिल चुके हैं। अंजू यादव, अनिल कुमार, अर्पिता घोष, आशीष डिसूजा। अब कोई नहीं बोल रहा, मतलब इन सबको मैं एब्सेंट मार्क करने वाला हूँ। जो अरे सर प्रेजेंट कौन कौन है? नाम बोलो। आकाश बेटा, हाँ देर से क्यों बोले बेटा आकाश? चलो कोई बात नहीं। पेटेंट कौन सा अकाउंट है आकाश बच्चे? सर वो मैं क्या है ना, मैं नया हूँ इस लेक्चर में, मेरा सब छूटा हुआ है, इसलिए सॉरी। एक मिनट रियल अकाउंट। अरे एक मिनट आकाश बेटा, आप अगर नए भी हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है कि नहीं है आकाश? यस सर। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है कि नहीं है? सर मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी स्टार्ट किया है, इसलिए। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? 11th। अरे बेटा 11th में तो हो। 11th में कौन से डिवीजन में हो बेटा? बी में। तो आपने कब ज्वाइन किया बच्चे? अभी ज्वाइन किया।
अच्छा ठीक है, आपकी क्लास टीचर का पता है आपको कौन है? सर नहीं, सॉरी। शेरिन में बी डिवीजन की क्लास टीचर कौन है? ओके, हाँ शेरिन मिस। ओके, मैं आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर भिजवाता हूँ। आकाश, आप अपना चेक करिएगा, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना क्लास का वो चेक करिए। यस सर। हाँ बोलो ना। कोई नहीं, कोई ग्रुप में ऐड हो जाओ। क्या? तो वो क्लास ग्रुप में मैसेज कर सकते हो क्लास टीचर का नाम, या फिर वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो जो भी टीचर ने मैसेजेस भेजा है आपको। डिटेल्स जिसने ऐड किया है वही आपके क्लास टीचर होंगे। अच्छा, आपको मैं क्लास टीचर को बोलूंगा आकाश बच्चे कि क्लास टीचर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेंगे क्लास ग्रुप में दोबारा। ओके, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, डोंट वरी। और ये आपको आज मिल जाना चाहिए। ठीक है, अभी अपन यार ये एक तो है ना जो एक मिनट बात सुनो बच्चों, जिससे मैं बात कर रहा हूँ केवल वही अपना माइक चालू रखें और बाकी सब अपना माइक बंद रखें। समझ में आया ना जिसको मैं बोलूं? नहीं करेंगे। क्या बोला? अच्छा, वो पेटेंट रियल अकाउंट है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का असेट है। ये आपने कोई फॉर्मूला रजिस्टर करा रखा है, जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन का चल रहा है, तो इसका फॉर्मूला कोई रजिस्टर करा लेता है और वही इसको बनाएगा वैक्सीन को। तो ये आपका असेट है और सारे असेट रियल अकाउंट होते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है? कौन बोलेगा? अर्पिता, अंजू, अतुल। पर्सनल अकाउंट। कौन बोल रहा है ये? पर्सनल, अभिषेक इनामदार। अभिषेक, बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब बोलो। आउटस्टैंडिंग इनकम आपने पर्सनल अकाउंट बोला, इसका मतलब क्या होता है? सर रिपीट अगेन सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट, आउटस्टैंडिंग इनकम का मीनिंग सर क्या है? लैंड.को। नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम का मीनिंग क्या है बेटा? अभिषेक, आउटस्टैंडिंग इनकम का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम प्लीज? Which one has to pay? Excuse me, sir. हाँ बोलिए बोलिए, अमाउंट हाँ बोलो बोलो बेटा। अमाउंट ऑफ इनकम विच इज ड्यू विच इज एंड नेट येट रिसीव्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर इन प्रेजेंट जो रिसीव नहीं हुआ है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अरे इनकम कमा तो ली है, मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने इनकम अर्न कर ली है, मेरी इनकम ड्यू हो गई ना, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो मेरे लिए क्या हो जाती है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, पेमेंट नहीं करा तो मेरे को पेमेंट मिलना बाकी है ना। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मेरे को इनकम किससे लेनी है? पर्टिकुलर पर्सन से लेनी है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है बच्चों? देवांग, देवांश, ऋषिकेश, अब कोई नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? नाम बोलो बेटा। पर्सनल अकाउंट सर। आपका नाम? अकाउंट। तो क्या नाम है? कौन बोल रहा था बच्चे? प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट है, आपने पहले से ही पे कर दिया, किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे किया है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमीशन रिसीव, ये कौन सा अकाउंट है? कशिश,
आशीष, कौन बोल रहा है बेटा? नाम बोलो। रितेश। रितेश, आगे क्या है? पूरा नाम बोलो बेटा। रितेश शिंदे। प्रीतीश शिंदे, ठीक है, वेरी गुड प्रीतीश। ये कमीशन रिसीव नॉमिनल अकाउंट है, क्या कारण से? कारण बताओ मेरे को। सर क्योंकि कमीशन रिसीव मतलब ये इनकम है, और इनकम को, एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। समझ में आया बच्चे? थोड़ा रीजनिंग भी दो, केवल मेरे को आंसर से मतलब नहीं है। फ्रेट, फ्रेट का मतलब मैंने आपको बताया ना। आपने जैसे अहमदाबाद में गुड्स परचेज करे, अब अहमदाबाद से वसई लाने का खर्चा होगा, ट्रक को पे करोगे, रेलवे को पे करोगे, उसको बोलते हैं फ्रेट, कैरेज, कार्टेज। तो दे आर सिनोनिम्स। तो फ्रेट किस तरह का अकाउंट हुआ, किस टाइप का अकाउंट? नॉमिनल, ये आपका खर्चा है। प्लांट एंड मशीनरी, कोमल, कौन बोला? कौन बोला? नाम बोलो। अदनान। अदनान, थोड़ा सा इमोशंस पे होल्ड करो। मैंने बोला ना, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बोलना चाहिए। फिर मैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं आखिर में आपके पास आऊंगा, जब कोई जवाब नहीं देगा ना तो मैं आपसे पूछूंगा। कोमल, कोमल, क्रिश, कृष्णा, कृष्णा, वन इज कृष्णा ढोलकिया, कृष्णा वर्मा। देखो मैं जिस जिसका नाम बोल रहा हूँ, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको एब्सेंट मार्क करने वाला हूँ। कुणाल, हाँ कुणाल बोल रहा है? यस सर। हाँ कुणाल, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज प्लांट एंड मशीनरी? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज इट इज एन असेट। सन्ड्री इनकम किस तरह का अकाउंट है कुणाल, बताइए। कौन सा सर? सन्ड्री इनकम, 13th वन, सन्ड्री इनकम। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, फिर लाइव स्टॉक। अब आप लोकेश परमार, लोकेश परमार, मनन त्रिवेदी, मनदीप, बेटा आप लोग बोलो, गलती तो करोगे तो अपन क्लास में ही तो बैठे, कोई एग्जाम हॉल में थोड़ी बैठे हैं। मानसी, नेहा, निक्की। रियल अकाउंट सर। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, पहले बोलो मेरे को। लाइव स्टॉक का मतलब बोलो। रियल, आप वो तो बुक में लिखा हुआ है रियल, मेरे को मतलब नहीं पता। लाइव स्टॉक का मतलब बताइए पहले। कौन बोला था रियल? रियल अकाउंट कौन बोला था? कौन बोला था रियल अकाउंट? बेटा बोलो, कोशिश करो ना बच्चे। आपने बोला रियल। मानसी, मनन, मनदीप, मानसी, नेहा। बेटा मैं कुछ आपको कह थोड़ी रहा हूँ, जस्ट। सर गुड्स, सर वो गुड्स है ना, इसीलिए वो रियल अकाउंट में आता है। एक मिनट, कौन? नाम बोलो बेटा आपका। सोमिल चौरसिया। क्या नाम है वापस से? चौरसिया, क्या नाम है आपका? सोमिल चौरसिया। सोमिल, आपका जवाब गलत जवाब है। मैं आपको सही करता हूँ। कोई और समझाना चाहेगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर किसी किसी के ऐसा फार्मिंग वार्मिंग के रहते तो उनका कैसा एसेट्स क्या हो गया, एनिमल्स। ठीक है। जो, एक मिनट, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा? फार्मिंग से इसका रिलेशन नहीं है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कैटल। कैटल में क्या क्या आता है आपका? काउ, गोट, कैमल, ये जो भी जानवर होते हैं ना, इनको अपन लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो लाइव स्टॉक इज एन असेट, सो असेट इज अ रियल अकाउंट। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये किस तरह का अकाउंट है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल? पूजा चौधरी, दे आर टू पूजा चौहान, नितेश यादव, निक्की मिश्रा, 4 जनों में से कोई भी नहीं बोला। प्राची चौहान, प्राची सालवी, प्रतीक, प्रीतेश, प्रीति यादव, प्रीति सानी, प्रिया मौर्य, राहुल। नॉमिनल अकाउंट। कौन बोला ये? नाम बोलो बेटा। सही बोला आपने? प्लीज टेल मी योर नेम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अरे आपने फ्री में सैंपल बांटे, ये आपका खर्चा कराया आपने, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। देन 16th इज राधिका, कौन सा अकाउंट है? राहुल, पर्सनल सर।
पर्सनल अकाउंट। पर्सनल ठीक है, ठीक है। माइक जिसको मैं बोलूँ ना वही अपना माइक खोले और बाकी अपना माइक बंद रखो ताकि क्लास अच्छे से चलेगी बच्चों। अच्छी चल रही है ना आज क्लास? बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग बहुत अच्छा चला रहे हो। अच्छा, फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस 17th इज। सर कैन आई? हाँ बोलो, पर्सनल अकाउंट। कारण बताओ, कारण बताओ, कारण बताओ। मेरे को केवल आंसर में इंटरेस्ट नहीं है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब बताओ पहले तो। मीन्स वी मतलब अभी तक हमें पैसा नहीं मिल रहा है काम का। गलत जवाब। कौन है? क्या बेटा, क्या नाम है आपका? संध्या। कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ। संध्या। और कोई बताना चाहेगा? कुरैशी। पैसा देना बाकी है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? अंजू यादव। अंजू। अंजू, अंजू का सही जवाब है। आपने क्या करा है? सर्विसेज तो अवेल कर ली है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब आपने एम्प्लॉय की, जो आपके यहाँ काम करता है ना, आपने उसकी सर्विसेज तो अवेल कर ली है लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया गया है, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। पैसा देना बाकी है। तो जो पैसा देना बाकी है उसको पर्सनल अकाउंट, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको राम, हरी, श्याम किसको पैसा देना है, तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पर्सनल अकाउंट है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये किस तरह का अकाउंट है? राज गुप्ता, राज पटेल, रणवीर, एनीवन वुड लाइक टू ट्राई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर? नॉमिनल अकाउंट। अरे नॉमिनल अकाउंट का मतलब ही होता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कौन सा अकाउंट है? सर कहना है पर्सनल अकाउंट। क्या कौन बोला पर्सनल अकाउंट? कारण बताओ मेरे को। सर इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, सो इट इज पर्सनल अकाउंट। ये किस तरह का पर्सनल अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद लोन अकाउंट। लोन अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट। अच्छा, नॉमिनल है तो क्यों है और पर्सनल है तो क्यों है? दोनों बताओ। चलो डिस्कशन रखते हैं अपन। नॉमिनल है तो नॉमिनल क्यों है, पर्सनल है? नॉमिनल कौन बोला था बेटा? नॉमिनल कोई बोला था ना बेटा? पर्सनल कौन बोला था? अब कोई नहीं बोलता। तो वो गलती करो ना, आप अपनी रीजनिंग दोगे, उसमें मैं करेक्शन करूंगा, तभी तो अपन पूरी क्लास को भी समझ में आएगा ना। कई लोग तो है बच्चे जो बोलते ही नहीं है, उनका नाम पुकारा जाता है। सर मैंने बोला पर्सनल। हाँ बोलो, क्यों पर्सनल? अंजू यादव। हाँ अंजू बोलो, क्यों है? सर वो बैंक से रिलेटेड है। बैंक से रिलेटेड है ऐसा नहीं बेटा, ये रीजन सही नहीं है तो इसका आंसर पर्सनल अकाउंट ही, लेकिन रीजन क्या है? अरे लोन किसी लोन रिप्रेजेंट कर रहा है, किसने लोन लिया है। हाँ, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। कंप्यूटर किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कारण? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है, लेकिन क्यों है बेटा? क्योंकि वो असेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड, ऐसे रीजन चाहिए मेरे को। लीगल एक्सपेंसेस किस तरह का अकाउंट है? लीगल एक्सपेंसेस 22 नॉमिनल। nominal because it is representing some expenses. All expenses are nominal account. Fixed deposit. Fixed deposit किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट। ये आपका असेट है ना, आपका पैसा है, तो ये रियल अकाउंट है। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, ये किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। आपको इनकम किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिसीव करनी है। अच्छा, ऑडिट फीस कौन बताएगा? हाँ अदनान, अंजू। सर ऑडिट का मतलब? नॉमिनल अकाउंट। हाँ, क्यों है नॉमिनल अकाउंट, क्यों है? मैं बता। एक्सपेंसेस। ये किस तरह का एक्सपेंसेस? आपके दोस्त ने पूछा ना ऑडिट का मतलब। चलो मैं बता देता हूँ। अरे बेटा, जो अकाउंट चेक करता है ना, ऑडिटिंग अकाउंट। हाँ, फीस पेड फॉर ऑडिटिंग, मतलब जो आपके यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई अकाउंटेंट दूसरा आपके यहाँ अकाउंट चेक करेगा ना, आप उसको फीस पे करोगे ऑडिट करने की, अकाउंट चेक करने की, तो उसको ऑडिट फीस कहा जाता है। ऑडिट फीस खर्चा है। ट्रेडमार्क
द मार्क अंडर विच द कंपनी ट्रेड। तो ये क्या है, आपका असेट है। क्या है, असेट है। तो ये किस तरह का अकाउंट हुआ मेरे प्यारे बच्चों? रियल रियल। अकाउंट। अच्छा, लॉस बाय फायर किस तरह का अकाउंट है? नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट। मोटर कार किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट। अच्छा, इनकम टैक्स किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल। ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नॉमिनल अकाउंट। ये जो देता है उसके लिए खर्चा है। तो अभी के लिए आप यही समझो कि ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है बच्चों। उसके बाद सिद्धि विनायक ट्रस्ट। पर्सनल अकाउंट। कारण क्योंकि वो लॉ से क्रिएट हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? अफनान। अफनान, वेरी गुड बेटा। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कोई भी ट्रस्ट है तो ये क्या है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, तो इट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। अच्छा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, रियल अकाउंट। ये आपका असेट है ना, आपके पास कुछ स्टेशनरी का सामान पड़ा है, इट इज योर असेट। इंडियन रेलवे, पर्सनल अकाउंट। it is created by law, creation of law, so it is personal account. Income received in advance, पर्सनल अकाउंट। because आपने एडवांस में रिसीव करी है, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये क्या है, किस तरह का अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। ये इनकम है। डिविडेंड का मतलब क्या? डिविडेंड का मतलब कौन बताएगा? डिविडेंड का प्रॉफिट को डिवाइड करके उनके शेयर होल्डर्स में बांटते हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अदनान, यू आर अदनान ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने बताया भी था। अरे जो लिमिटेड कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न देती है उसको, प्रॉफिट को बांटती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। वेरी गुड। अगर आप शुरू में इतना अच्छा समझने लग रहे हो तो यू विल गो अ वेरी लॉन्ग वे, आप बहुत अच्छी जगह जाओगे। वेरी गुड, स्टडी दिस वे ओनली। तो डिविडेंड इनकम है, और इनकम को आप क्या मानोगे? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इनकम को आप नॉमिनल अकाउंट बोलोगे। डिस्काउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। कारण, सर वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है कम लोगों को। इज एन टाइप ऑफ इनकम इटसेल्फ। नहीं, ये इनकम भी हो सकता है। अगर डिस्काउंट रिसीव करा है तो इनकम है, डिस्काउंट दिया है तो खर्चा है। तो और जो खर्चा और इनकम होती है उसको अपन नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है ना? कुछ आप पैसा कम करके लेते हो, रिडक्शन, तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, और इसको अपन नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। राज एंड कंपनी, सचिन, अब मैं जिसको पूछूं, साधना, हाँ, साधना यादव, कुछ लोग बिल्कुल, सागर सुतार, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, कारण बताओ जी, किस तरह का पर्सनल अकाउंट है मेरे बच्चे? बिकॉज सर ये राज एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, आप पूरा पढ़ो बेटा। राज एंड कंपनी है ना, ये राज एंड कंपनी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आर्टिफिशियल अकाउंट है ना। इट इज, अरे बेटा, ये इट इज अ कंपनी, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है ना? राज एंड कंपनी ये किसी संस्था का नाम है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी राइट है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए किस कारण से है। रिपेयर्स, नॉमिनल अकाउंट। और रॉयल्टी, नॉमिनल अकाउंट, इट इज एन इनकम। रॉयल्टी का मतलब सर कोई राइट्स के लिए पैसा वैसा लेते हैं अगर तो। हाँ, मतलब आपने, मेरे पास एक माइन है, माइन जानते ना,
जिसमें से कुछ मिनरल्स निकलते हैं। मैं वो माइन किसी को देता हूँ और उसको राइट देता हूँ कि इसमें से मिनरल निकालो, उसके बदले में मेरे को कुछ इनकम मिलेगी। उस इनकम का नाम होता है रॉयल्टी। क्या होता है? उस इनकम का नाम होता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी इनकम है, देने वाले के लिए खर्चा है, मिलने वाले के लिए इनकम है। तो ये एक्सपेंसेस या इनकम को नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। तो आई होप ये 6 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन, एनी स्टूडेंट? आप 79 बच्चे अभी है, किसी को कोई डाउट है क्या? और बच्चे कम कैसे आए हैं भाई? प्लीज अपने दोस्तों को बोलिए अपने दोस्तों को बोलिए ज्वाइन करें, बाद में कल से ज्वाइन करें, आज कोई बात नहीं। मैंने कोई नई बात नहीं पढ़ाई है, अपन ने केवल ये क्वेश्चन करा है और कल मैं नई बात पढ़ाने वाला हूँ आपको। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और ये जो आपको कल मैं पढ़ाऊंगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। देखो ये वाला आपने जो पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये जो आपने पढ़ा था ना पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इस टाइप के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब कल जो अपन पढ़ेंगे ना मेरे बच्चों, कल जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न अप्रोच। वो थी ट्रेडिशनल अप्रोच और ये थी मॉडर्न अप्रोच। देखो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए ये गैप के बाद लिया है कि जो ट्रेडिशनल था ना वो आपको पक्का हो गया। अब आप केवल ट्रेडिशनल समझना चाहते हो तो ट्रेडिशनल समझो, आप कंफ्यूज मत होना। मॉडर्न क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो मेरे को पढ़ाना है, इसमें आप दोनों को लेके कंफ्यूज मत होना। वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, अपन ज्यादातर ट्रेडिशनल अप्रोच ही अप्लाई करेंगे अपना प्रैक्टिकल सम्स करते वक्त। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्योंकि बुक में दे रखा है तो मैं आपको मॉडर्न अप्रोच भी बता दूंगा। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन दोनों को लेके आप कंफ्यूज मत होना, दोनों को लेके आप कंफ्यूज मत होना। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच। पर्सनल, रियल और नॉमिनल जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ट्रेडिशनल मतलब पुरानी अप्रोच। और नई अप्रोच क्या है वो कल अपन देखेंगे, मॉडर्न वे टू क्लासिफाई द अकाउंट्स। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में दे रखा है तो अपने को करना है। तो सुजल राव, काजल तिवारी, आप लोग हैं अभी या चले गए हैं? विनय सिंह, विधि वानखड़े, कोई भी नहीं बोल रहा है। स्नेहल पांडे, हाँ कौन है? नाम बोलो। हाँ बोलो बेटा। एक डाउट है सर। हाँ बोलो 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 सर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 में 20 ना 30 है ना? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर मैं खोल लूंगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा है? 29 एंड 30। 29 इनकम टैक्स। हाँ हाँ सर, दोनों टैक्स तो दोनों एक अकाउंट में आने चाहिए ना? देखो बेटा, नहीं देखो देखो देखो, हाँ अब देखो इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स क्या है बच्चे? इनकम टैक्स आपने जो इनकम कमाई ना, आपने जो इनकम कमाई ना, ये उसके ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स? किसको? हाँ इनकम टैक्स, आप पहले इनकम टैक्स का मतलब समझो। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? किसी पर्सन के ऊपर लगता है। सब ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई। अब जीएसटी का मतलब समझो। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स का मतलब पता है क्या आपको बेटा? यस सर, जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, कुछ सामान खरीदो तो उसके ऊपर। हाँ, जैसे आप गए, आपने बाजार में स्कूटर खरीदा, कैलकुलेटर खरीदा, मोबाइल खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो पहले क्या है, इंडिया में अलग अलग टाइप के 2017 से पहले इंडिया में अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे। जुलाई 2017 से पहले इंडिया में अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, जैसे कस्टम है, एक्साइज है, ऑक्ट्रॉय है। कस्टम तो अभी भी है, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज, ये सब तरह के टैक्सेस थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मल्टीपल टैक्सेस थे, जो सब टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बंद करके, सर्विस टैक्स वगैरह को बंद करके एक कंपोजिट टैक्स लगा दिया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपकी स्टेज के लिए अभी अपन इसको खर्चा मानते हैं। मतलब जब अपन कोई भी गुड्स खरीदने गए ना, जैसे कंप्यूटर खरीदने गए तो अपन को टैक्स देना पड़ता है। अपन टीवी खरीदने गए, अपन पंखा खरीदने गए, अपन कूलर खरीदने गए, स्कूटर खरीदने गए, अपन बुक खरीदने गए,
इन सब चीजों के ऊपर क्या है, टैक्स लगता है, तो ये आपका खर्चा है। क्या है? खर्चा। समझ में आया? यस सर। अदनान, ये अपन जब खरीदते हैं ना तब देते हैं, और इनकम टैक्स क्या करते हैं, जब अपन कमाते हैं ना तो देते हैं। तो ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, तो ये ये एक्सपेंस हो गया जीएसटी अपना। एम आई क्लियर? यस सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो और पूछिए बच्चों। देखो तो, और जैसे अपन ने आज कितने आइटम्स करे, 40 आइटम्स करे, तो 40 वंशज मलेशिया। देखिए बच्चों, जब मैं जिनका नाम बोलता हूँ ना बच्चों, आप लोग रिस्पॉन्ड करा करें ताकि पता पड़े। विनय सिंह, काजल तिवारी, स्नेहा पांडे। तो चलिए, आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें इन 40 आइटम्स में किसी को डाउट हो तो देख लो, एक बार देख लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, एक बार देख लो। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। ये 40 आइटम्स देख लो। ठीक है बच्चों, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। हाँ बोलो बच्चे। सर 13 वाला सन्ड्री इनकम। इनकम, देखो इनकम है। सन्ड्री का मतलब क्या होता है? मिसलेनियस इनकम। क्या होता है मिसलेनियस इनकम? जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। आपका स्कूल है, जैसे कॉलेज है, तो कॉलेज में जो आप फीस देते हो ना, वो तो मेन इनकम है। अब क्या होता है, कॉलेज में न्यूज़पेपर आता है। क्या आता है? न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर का वेस्ट जो होता है ना, रद्दी जिसको बोलते हैं, बंगाल, आप इसे बेचते हो, तो ये इस टाइप की इनकम को क्या बोलते हैं? सन्ड्री इनकम। तो जो भी इनकम इस तरह की इनकम होती है ना, वो नॉमिनल अकाउंट में जाती है। इनकम और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, तो इसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। एनीवन एल्स? सर एक बार और समझाओ ना, नहीं समझा। अच्छा, अरे इनकम है। ये किसका आवाज आ रहा है? अपना माइक बंद करो। अच्छा, देखिए ये क्या है? सन्ड्री इनकम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो भी इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट होता है उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। समझा कि नहीं समझा बच्चे? हाँ सर, समझा। अच्छा, और कोई डाउट? 40 आइटम्स में से किसी को भी डाउट हो तो पूछो। आई एम देयर टू आंसर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। सर 11th वाला बताइए ना। फ्रेट। फ्रेट का मतलब क्या होता है? पहले तो फ्रेट का मतलब बताओ। एनीवन? फ्रेट का मतलब क्या होता है? अफनान? ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, वो खर्चा होता है ना, तो खर्चे को क्या बोलते हैं? खर्चा करना पड़ता है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? खर्चे को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। फ्रेट का मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसको फ्रेट बोलते हैं, और फ्रेट खर्चा है तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ। एनीवन एल्स? कोई डाउट? सर ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क है। जैसे ट्रेडमार्क का मतलब वो क्या होता है? कोई भी मार्क जिसके अंडर में कंपनी ट्रेड करती है। जैसे बजाज, क्या है? बजाज। ये बजाज क्या है? एक ट्रेडमार्क है। तो ये क्या हो जाता है? एक असेट हो जाता है। क्या हो जाता है? असेट हो जाता है। द मार्क अंडर विच द कंपनी ट्रेड। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड ये ट्रेडमार्क है, तो ये कंपनी का असेट है। क्या है? कंपनी का असेट है। अगर आप इसको मैकडोनल्ड के नाम को बेचोगे ना, तो आपको इसकी इसके करोड़ों रुपए मिलेंगे। कितने रुपए? करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो ये कंपनी का असेट है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट असेट, तो असेट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एनीवन एल्स? सर हाँ बोलो। हाँ सर, अगर हम लोग किसी कंपनी के शेयर को खरीदते तो सर उस शेयर और होल्डिंग्स को हम लोग किस अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे? 1 मिनट। शेयर्स क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है ना बेटा। शेयर्स क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है ना। आपने कोई चीज खरीदी है, हाँ, तो आपने टीवी खरीदा, ये आपकी प्रॉपर्टी है। उसी तरह से आपने शेयर्स खरीदे तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसको असेट, रियल अकाउंट बोलोगे। ठीक है? ओके। हाँ, और बोलो। एनीवन? एनी डाउट? एनी अदर डाउट? सर ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? आपके पास कंप्यूटर है आपके ऑफिस में, तो ये आपका असेट है। तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या हुआ? आपकी प्रॉपर्टी हुई, तो ये आपका रियल अकाउंट है। ठीक है?
कल मैं आपको मॉडर्न अप्रोच टू क्लासिफाइड अकाउंट्स पढ़ाऊंगा बच्चों, तो प्लीज बी देयर ऑन टाइम। अगर कोई डाउट है तो आप लोग रुकिए, अगर डाउट नहीं है तो आप ये लेक्चर लीव कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो। सर बोलो बोलो। सर पेज मेरे नंबर को 24 पे। नाम मालूम पड़ गया है मिस का, रोता फर्नांडिस है मेरी हाँ क्लास टीचर। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा मिस को कि लेक्चर्स आपको भेजेंगे, ठीक है? ठीक है सर हाँ बोलिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ अरे लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? ये कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है? गाय भैंस ऊंट, ये क्या होता है? ये इनको बोलते हैं लाइव स्टॉक। ये भी आपके पास जो बकरी है, गाय है, भैंस है, ये आपका असेट होता है। क्या होता है? असेट होता है। तो असेट को क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट, ठीक है? और कोई डाउट? तो ठीक है, आप लोग ग्रुप छोड़िए, अगर कोई डाउट हो तो मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोग पूछिए। सर बोलिए। सर 24 पेज नंबर 24 पे जो सॉल्यूशन है उसको नोटबुक में लिखना है। एक मिनट, पेज नंबर 24 पे मेरे को जाने दो। पेज नंबर 24 किधर गया बेटा? आप किस पेज, कौन सी बात कर रहे हो बच्चे? सर वो रूल्स का है ना, वो पेज की बात कर रहा है। रूल्स का कौन सा? मतलब आप 24 ऐसे कर रहे हैं, ऐसे चाहते हैं? ये देखिए, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 24। अच्छा बेटा, ये तो मैंने आपको बोला ना, आपको लिखना ही होगा। मैंने आपको 20-20 बार लिखने को बोला था ना। ये डेबिट, ये मैंने तो आपको बोला था, आपको नींद में भी याद होना चाहिए, तो आपको 20-20 बार लिखना है ये। ये नहीं हाँ सर, ये नहीं, इसके नीचे जो सॉल्यूशन है। हाँ वो करना है ना, मैंने आपको समझाया ना क्लास में, एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मैं आपको खोल के बताता हूँ। एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स, एक मिनट। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, एक मिनट खुल रहा है। ये मैंने आपको एट लेंथ बताया है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये आपको करना ही है, ठीक है? ये आपको करना है। और पूछिए बच्चों, एनी अदर डाउट? अदरवाइज यू ऑल में लीव। 3 तीनों क्या बोल रहे हो? सर, तीनों करना है, तीनों करना है। हाँ देखो बच्चों, जो अपना क्लास में डिस्कस हुआ है ना, वो आपको करना ही है। अच्छा होगा अगर आप करेंगे तो। देखो अब आप केजी क्लास के बच्चे नहीं हो जहाँ पे आपके पीछे पढ़ा जाएगा। ये आपके इंटरेस्ट में है, क्लास में जो भी डिस्कस हुआ है उसको अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है? हाँ, और कोई बच्चा? एनीवन एल्स? Any doubt, any difficulty? Otherwise, you all may leave. I am ending the meeting over here.